بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ڈسکشن کمپیوٹر سسٹم کے اندر جو ڈفرینٹ ماڈیولز ہیں، میموری ماڈیول ہے، آئی ماڈیول ہے، پروسیسر ہے، ان کے درمیان کس طرح سے کمیونیکیشن ہوتی ہے اور اس کے لیے کون کون سے بس کے اسٹرکچرز ہیں اور اس کے اندر اس کی کیا پراپرٹیز ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ تو ہمارے پاس اگر ہم دیکھ لیں، ہمارے پاس کمپیوٹر سسٹم میں جو مین ماڈیولز ہیں، ایک ہمارے پاس میموری ماڈیول ہے۔ میموری ماڈیول جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو میموری ورڈ اسٹور ہوتے ہیں اس کا اپنا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے۔ جب یہ ورڈ میموری میں اسٹور ہے اس کا اپنا ایڈریس ہے۔ تو اگر ہم دیکھ لیں یہاں پہ تو ہمیں جو یہاں میموری میں آپ کو یہ ریڈ جو ہے یہ کنٹرول سگنل نظر آ رہا ہے، رائٹ کا کنٹرول سگنل آ رہا ہے، ان کو ریڈ کیا جا سکتا ہے ڈیٹا کو میموری سے، یا رائٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایڈریس اسپیسیفائی کرنے کے لیے ایڈریس لائن ہے، اور اس میں ڈیٹا کو رائٹ کرنے کے لیے ڈیٹا لائن ہے، جسے ڈیٹا جو ہے رائٹ کیا جائے گا۔ ڈیٹا ریڈ کرنا ہے تو ایڈریس اسپیسیفائی کیا جائے گا، ڈیٹا میموری سے ریڈ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو آئی او ماڈیول ہے جو کہ ڈفرینٹ ڈیوائسز کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہمارے پاس جو ہمارے پاس ڈفرینٹ آئی او ماڈیولز ہیں، آئی او ڈیوائسز ہیں، ان کے ساتھ جو آئی او ماڈیول کنیکٹڈ ہوگا اور ڈفرینٹ ڈیوائسز سے ڈیٹا کو ریڈ کیا جا سکتا ہے۔ ریڈ کے لیے کنٹرول سگنل، رائٹ کے لیے کنٹرول سگنل، اسی طرح سے ایڈریس اسپیسیفائی کرنے کے لیے جو ہے انٹرنل ڈیٹا جو ہے اس کے لیے لائنز، ایکسٹرنل ڈیٹا کے لیے، اسی طرح سے ڈیٹا کو ریڈ کیا جائے گا تو یہاں پہ ڈیٹا جو ہے ریڈ کنٹرول سگنل کو انیبل کیا جائے گا، رائٹ کے لیے رائٹ کو۔ تو اسی طرح سے جب ڈیٹا ریڈ کیا جائے گا اس میں سے تو یوز کرتے ہیں، اس میں یہ ڈفرینٹ پورٹس ہیں، یہ ڈفرینٹ ڈیوائسز کو اسپیسیفائی کریں گے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو پروسیسر ہے، پروسیسر ہمارے پاس مین کمپوننٹ ہے۔ اس کی اندر جو ہے ہمارے پاس جو ایک انسٹرکشنز پروسیسر کو دی جائیں گی، اس کے ساتھ ڈیٹا ہوگا، اس ڈیٹا پہ انسٹرکشنز اپلائی ہوں گی اور انٹرپٹ سگنلز جو ہے پروسیسر کو پروسیسر ریسیو کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اسپیسیفائی کر سکتا ہے پروسیسر ایڈریس کو، جس لوکیشن میں ڈیٹا کو رائٹ کرنا ہے۔ پروسیسر میں اس طرح کنٹرول سگنل یوز کیے جائیں گے، پروسیسر یوز کرے گا اس کو ڈفرینٹ ڈیوائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اسی طرح ڈیٹا جو ہے اس سے جو ڈیٹا پہ کمپیوٹیشن ہوئی ہے یا پروسیسنگ کے جو رزلٹ جنریٹ ہوا ہے وہ سارا۔ تو یہ ہمارے پاس مین کمپیوٹر کے ماڈیولس ہیں جس کو جو ہمارے پاس اس کمپیوٹر سسٹم میں ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان جو انٹر کنیکشن اس کی انٹر کنیکشن جو اسٹرکچرز ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہم نے بات کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ انٹر کنیکشن اسٹرکچر ہوں گے، تو ان جو ہمارے پاس انٹر کنیکشن اسٹرکچرز ہیں ان کو کچھ آپریشنز جو ہے وہ یا ٹرانسفر آپریشن جو ہے ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا، جو بہت سے پریمیٹیو ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ایک آپریشن میموری ٹو پروسیسر جو ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا۔ فار ایگزامپل پروسیسر جو ہے وہ ڈیٹا ریڈ کرنا چاہتا ہے، انسٹرکشن یا ڈیٹا میموری سے، تو یہ سپورٹ ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پروسیسر ٹو میموری، جب ہمارے پاس پروسیسر جو ہے وہ میموری پہ رائٹ کرتا ہے ڈیٹا کو تو اس کی سپورٹ پرووائڈ کرنی چاہیے انٹر کنیکشن اسٹرکچر کو۔ اس طرح سے آئی او پروسیسر جو ہے وہ ریڈ کرتا ہے ڈیٹا کسی آئی او ڈیوائس سے، آئی او ماڈیول کو اس کی سپورٹ ہونی چاہیے اس کے اندر۔ دوسرا پروسیسر ٹو آئی او پروسیسر، اگر ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے کسی ڈیوائس کو تو اس کی سپورٹ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کسی آئی او ڈیوائس اور میموری ریم کے درمیان کمیونیکیشن یا ڈیٹا ٹرانسفر ہونا ہے تو اس کی سپورٹ ہونی چاہیے۔ اس میں اکثر اوقات جو ہے آئی او ڈیوائسز جو ہیں وہ ریم سے ڈائریکٹلی ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اس کے اندر پروسیسر کی ضرورت انوالومنٹ نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ میموری ایکسیس۔ تو یہ فیسلٹی بھی جو ہے ہمارے پاس اویلیبل ہے
डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस भी डिवाइसेस आई डिवाइसेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जितने भी हमने बात की मेन मॉड्यूल्स के दरमियान बस इंटरकनेक्शन जो है वो हमारे पास क्या है। बेसिकली बस जो है वो हमारे पास एक पाथवे है, दो या उससे ज़्यादा जो हमारे पास डिवाइसेस कम्युनिकेट करने जाती हैं। अब उसमें वो डिवाइसेस जो बस होते हैं वो बस हमारे पास एक शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम है, और अगर उस शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर मल्टीपल दो डिवाइसेस एक वक्त में डाटा सेंड करती हैं तो उनका सिग्नल जो है वो लैग हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इशू है इसके अंदर। दूसरा हमारे पास जो बस होती है उसके अंदर जो हमारी बस कम्युनिकेशन लाइंस है उसके अंदर वो मल्टीपल लाइंस होती हैं और उसके अंदर हर एक लाइन पे या 01 या बाइनरी 0 या बाइनरी 1 ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके अंदर डिफरेंट बसेस हो सकती हैं जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान और डिफरेंट लेवल पे कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। इसमें से हमारे पास जो ज़्यादा पॉपुलर है वो सिस्टम बस है। सिस्टम बस जो है वो कंप्यूटर सिस्टम की मेजर कंपोनेंट्स जो है उसको आपस में उस कनेक्शन या कम्युनिकेशन के इस्तेमाल होती है। इसमें हमारे पास मेन प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो, आई मॉड्यूल। तो हमारे पास जितने भी मेन कंपोनेंट्स के दरमियान जो उनका कम्युनिकेशन है या कंप्यूटर का इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर है वो एक या एक से ज़्यादा बस इसको यूज़ कर सकता है। इसमें हमारे पास एक जो पॉपुलर बस है डाटा बस। डाटा बस हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास मॉड्यूल्स हैं या कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम के, उनके दरमियान डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसकी जो विड्थ है ये तकरीबन हमारे पास 3264 या 128 बिट ऐसे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसके अंदर जितनी ज़्यादा आपके डेटाबेस की विड्थ होगी ही उतनी ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है एक वक्त में डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान ट्रांसफर की जा सकती है। और इस तरह से हमारे पास ये जो डाटा बस है इसमें एक लाइन एक टाइम के ऊपर जो कितनी बिट्स को ट्रांसफर किया जा सकती है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है हमारे पास। अगर 1 to 8 है तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस 1 to 8 है तो एक टाइम में 1 to 8 बिट्स जो है वो ट्रांसफर की जा सकती हैं। तो इसी तरह से जितनी ज़्यादा हमारे पास बिट होगी डेटाबेस की उतनी ही हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और इतनी ही ज़्यादा हमारे पास सिस्टम के दरमियान सिस्टम या जो कंपोनेंट्स हैं वो डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं इतनी ज़्यादा स्पीड से। तो हमने बात कर ली कि हमारे पास डेटाबेस जो है वो की फैक्टर है, हमारे पास सिस्टम की परफॉर्मेंस इस पर डिपेंड करती है। दूसरा जो है हमारे पास वो है एड्रेस बस। एड्रेस बस जो है इसको यूज़ किया जाता है जब किसी भी जब कभी रैम से या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा को रीड या डेटा राइट किया जाए तो उसमें जब सोर्स लोकेशन या डेस्टिनेशन लोकेशन या डिवाइस, ठीक है, सोर्स लोकेशन या डिवाइस और डेस्टिनेशन लोकेशन डिवाइस बताई जाती है तो उसमें एड्रेस बस को यूज़ किया जाता है। अगर हमारे पास जिस मिसाल के तौर पर प्रोसेसर जो है वो रीड करना चाहता है कीवर्ड मेमोरी से, ठीक है, तो वो पहले उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्पेसिफाई करेगा यूजिंग एड्रेस लाइन या एड्रेस बस के जरिए से, ठीक है। तो उसके बाद वो रीड कर सकता है डाटा को। तो
इसी तरह से जो हमारे पास इसकी विड्थ होती है एड्रेस बस की, वो ये स्पेसिफाई करती है कि हम कितनी मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये उसकी कैपेसिटी होती है, कितनी मैक्सिमम हम मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, ये उस एड्रेस बस की विड्थ जो है उसको स्पेसिफाई करती है। इसी तरह से हमारे पास जो एड्रेस बस है उसको यूज़ करके डिफरेंट आईओ पोर्ट्स जो कि आईओ मॉड्यूल्स के जरिए से हम आईओ डिवाइसेस को एक्सेस करते हैं, तो उसको भी स्पेसिफाई किया जा सकता है। उसमें हमारे पास किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल को सिलेक्ट करने के लिए जो उसकी हायर ऑर्डर बिट्स हैं वो यूज़ की जाती हैं किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल को सिलेक्ट करने के लिए। डिफरेंट मॉड्यूल कनेक्टेड है, तो फॉर एग्जांपल मॉड्यूल नंबर 0, मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3, ठीक है, और फिर उसके अंदर जो उसकी मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है, उनको एक्सेस करने के लिए लोअर बिट्स यूज़ की जाती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास दूसरी जो अहम बस है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस जो है उसको यूज़ करके हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा और एड्रेस लाइन की एक्सेस को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास डाटा बस और एड्रेस बस को मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ करेंगे, बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे सिस्टम के अंदर, तो उनकी एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल बस को इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके अलावा और कंपोनेंट्स को भी कंट्रोल सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। तो कंट्रोल सिग्नल जब ट्रांसमिट होते हैं तो उसके अंदर एक तो हमारे पास कमांड होगी, ठीक है, जैसे रीड करना है तो रीड कमांड है, राइट कमांड है। तो इसी तरह इसके साथ साथ एक टाइमिंग इंफॉर्मेशन है, ये भी सेंड की जाती है कंट्रोल बस के जरिए से। जो टाइमिंग इंफॉर्मेशन है या सिग्नल्स हैं वो बेसिकली क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उनको सिंक्रोनाइज करना होता है यूजिंग टाइमिंग सिग्नल, तो वो वहाँ पे काम आती है। और इसी तरह से कमांड जो है वो स्पेसिफाई करती है ऑपरेशंस, कौन सा ऑपरेशन करना है, रीड करना है, राइट करना है, जो भी ऑपरेशन है वो इसके जरिए से स्पेसिफाई होते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो है ये एक बस इंटरकनेक्शन स्कीम है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोसेसर है, रैम आपकी है, मेमोरी है, और या रैम और मेमोरी मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा आईओ कंपोनेंट्स हैं, तो वो सारे आप देख सकते हैं कि कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ थ्रू डाटा लाइंस या डाटा बस। इसके जरिए से इन डिवाइसेस के दरमियान, कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा एक्सचेंज होगा, और फिर एड्रेस लाइंस है जिसके जरिए से इन जब प्रोसेसर जो है मेमोरी से या आईओ डिवाइसेस से डेटा रीड करेगा या राइट करेगा तो एड्रेस स्पेसिफाई करेगा। और इसी तरह से कंट्रोल लाइंस हैं जिससे इस इन कंपोनेंट्स को कंट्रोल भी किया जा सकता है, और उसके अलावा और कंट्रोल सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो बस है उसके अंदर एक तो ये है कि अगर हम बहुत सारे उसके अंदर कंपोनेंट्स एक ही बस के साथ अटैच हैं, तो अगर हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स अटैच होते हैं तो उसमें मसला ये है कि उससे ज़्यादा डिवाइसेस बाई एक सिंगल बस के साथ अटैच करने से बहुत सारा ज़्यादा जो प्रोपोगेशन डिले है वो इंक्रीज होगा उस बस के ऊपर, ठीक है। दूसरा, फिर उसके दरमियान जब डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान उसको शेयर किया जाएगा तो वो भी डिफिकल्ट होगा। दूसरा ये कि इसका हल ये भी हो सकता है कि हम बस जो है उसकी विड्थ को बढ़ा दें, लेकिन उससे भी हमारे पास हाई स्पीड डिवाइसेस मौजूद हैं जिससे जो कि डेटा ट्रांसफर करना चाहती हैं, और उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो स्टिल जो है वो कम हो जाती है एक सिंगल बस के केस में। तो इसमें हमारे पास फिर ये होता है कि डिफरेंट बसेस यूज़ होती हैं कम्युनिकेशन के लिए, एक बस नहीं यूज़ होती। तो इसमें हम देख सकते हैं, आपके सामने टॉप पे जो नज़र आ रही है
یہ آپ کے پاس ٹریڈیشنل بس آرکیٹیکچر ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کے پاس یہ سسٹم بس ہے جس کے ذریعے سے مین میموری کنیکٹڈ ہے اس پروسیسر کے ساتھ اور ڈیوائسز کے ساتھ. اور یہ آپ اگر دیکھ لیں سسٹم بس کو تو یہ کنیکٹڈ ہے یہاں پہ پروسیسر کے ساتھ, یہ لوکل بس کے ساتھ. لوکل بسز کے ذریعے سے کیشے پروسیسر آپس میں کنیکٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے پھر یہ کیشے کے ذریعے سے پروسیسر جو ہے وہ سسٹم بس سے کنیکٹڈ ہے. اور اسی طرح سے یہ ایکسپینشن بس ہے جس کے اوپر ہمارے پاس براڈبینڈ ڈیوائسز ہیں, نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ ہے, اسکزی ڈیوائسز ہیں, اور موڈم ہے, سیریل انٹرفیسز والی ڈیوائسز ہیں. یہ ہمارے پاس کنیکٹڈ ہے تھرو ایکسپینشن بس انٹرفیس. یہ ملٹیپل بسز یوز کی گئی ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس پروسیسر اور کیشے آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں تو وہ اس سے اور ڈیوائسز سے افیکٹ نہ ہو. یا اگر مین میموری اور آئی او ڈیوائسز کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے, مین میموری اور آئی او ڈیوائسز کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے, تو اس کو پروسیسر کو کیشے جو ہے وہ آپس میں افیکٹ نہ ہو. یا ہمارے پاس اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیوائسز جو ہیں وہ آپس میں کمیونیکیشن کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اور یہ میموری مین میموری سے پروسیسر کے درمیان کمیونیکیشن ہو رہی ہے. تو یہ ملٹیپل بسز میں یہ فائدہ ہوا کہ ایک ٹائم میں ملٹیپل آپریشنس پرفارم کرنے کی پاسبلٹی ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اسٹل اس کے اندر ایک ایشو ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہائی اسپیڈ ڈیوائسز موجود ہوتی ہیں, جس طرح سے ہمارے پاس گیگابائٹ ایتھرنیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح ہائی اسپیڈ گرافک کارڈس ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ فائر وائر ہے, تو اس کے لیے یہ جو آرکیٹیکچر ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سوٹیبل نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس دوسرا آرکیٹیکچر ہے, وہ آرکیٹیکچر ہائی پرفارمنس آرکیٹیکچر اس کو کہتے ہیں. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں یہ باٹم پہ یہاں پہ جو ہے ہائی اسپیڈ بس یوز کی گئی ہے, اور اس ہائی اسپیڈ بس کے ساتھ اٹیچ ہیں آپ کے ہائی اسپیڈ جو ڈیوائسز آئی او ڈیوائسز ہیں, اسکزی ڈیوائسز ہیں, فائر وائر ہے, گرافک کارڈ ہیں, ٹھیک ہے, لین ہے, ان کے وہ ہائی اسپیڈ ٹرانسفر چاہیے. تو اس کے لیے ہائی اسپیڈ بس کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے, اور ان کے درمیان میں استعمال ہو رہا ہے کیشے یا برج انٹرفیس. تو یہ بیسیکلی ہائی اسپیڈ بفر کمپوننٹ ہے جو کہ کمیونیکیشن پرووائڈ کر رہا ہے ہائی اسپیڈ بس اور سسٹم بس کے درمیان, اور ہائی اسپیڈ بس اور پروسیسر کے درمیان, ٹھیک ہے. تو یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے, اور وہاں پہ سسٹم بس یوز ہو رہی ہے پروسیسر اور میموری کے درمیان, ریم کے درمیان کمیونیکیشن کے لیے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہاں پہ دوسری ایکسپینشن بس ہے جو یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے, جو ہمارے پاس لو اسپیڈ آئی او ڈیوائسز ہیں, اتنی زیادہ ہائی اسپیڈ نہیں چاہیے. تو وہاں جیسے ہمارے پاس فیکس مشین ہے, موڈم ہے, ڈیوائسز ہیں, تو یہ اس کے لیے یہاں پہ بس ایکسپینشن بس انٹرفیس ہے. تو یہ ملٹیپل بسز کو یوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو یہاں پہ ہائی اسپیڈ بس ہے اس کو یوز کر کے جو جن آئی ڈیوائسز کو ڈیٹا ٹرانسفر اسپیڈ زیادہ چاہیے اس کو کمپنسیٹ کر سکیں. اچھا, جب ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے بس ڈیزائنز موجود ہیں, لیکن اس میں ہر ایک جو ہمارے پاس ڈیزائن ہے وہ اس میں کوئی ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں. اس میں ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں بس ڈیزائن کے اندر, ایک تو اس کے اندر اس کی ٹائپ میں کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ, ہمارے پاس ڈیزائن کے اندر ڈیڈیکیٹڈ بسز یوز ہوئی ہیں یا ملٹی پلیکسنگ ہے. تو ڈیڈیکیٹڈ جو بسز ہیں اس میں ہمارے پاس ایگزامپل یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایڈریس بس الگ سے ہو اور ڈیٹا بس الگ سے, مطلب ڈفرینٹ آپریشن کے لیے ڈفرینٹ ہمارے پاس بسز موجود ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جس طرح ہم ایگزامپل لے لیجیے, ہمارے پاس ایڈریس بس الگ سے ہو اور ہمارے پاس ڈیٹا بس الگ سے.
इस केस में हमारे पास थोड़ी सी कास्ट बढ़ जाएगी सिस्टम की, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास डेडिकेटेड बसेस होंगी और उसमें हमें जो थ्रूपुट मिलेगी वो अच्छी मिलेगी सिस्टम की ओवरऑल। दूसरा हमारे पास है कि हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग हो, टाइम मल्टीप्लेक्सिंग हो, किस तरह से ये सेम जो हमारे पास बस है सिंगल बस हो और वही हमारे पास एड्रेस को ट्रांसफ़र करने के लिए बिटवीन द कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो और डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए वही इस्तेमाल हो। वो किस तरह से होगा कि हमारे पास अगर किसी उसको एड्रेस पहले कोई ऑपरेशन होना है तो पहले एड्रेस को ट्रांसफ़र कर लिया जाए उसको यूज़ करके, तो फिर उसके बाद उसी को यूज़ करके डाटा को रीड कर लिया जाए। लेकिन इसमें हमारे पास एक तो ये सर्किटरी है सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और दूसरा हमारे पास कंटेंशन होगी मल्टीपल कंपोनेंट सेम बस को यूज़ करने का, बहुत सारे ऑपरेशन हमारे पास पैरेलल नहीं हो सकते। दूसरा हमारे पास जो चीज़ है मेथड ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब जब हमारे पास बस को यूज़ किया जाता है तो मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका एक्सेस जो है वो किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। अगर वो बस वो एक्सेस मल्टीपल डिवाइसेस कर रही हैं तो कौन उसको एक्सेस करेगा, ठीक है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है। तो इसमें एक जो है वो सेंट्रलाइज अप्रोच है जिसके अंदर हमारे पास एक सेंट्रलाइज डिवाइस होगी जो कि इसको कंट्रोल करेगी, कौन सा कंपोनेंट जो है वो कंट्रोल ले सकता है बसेस का, तो किस तरह से वो एक्सेस करेगा, किस तरह से वो रिलीज करेगा। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड मैकेनिज्म हो सकता है जिसके अंदर हर एक कंपोनेंट जो है जो सिस्टम के अंदर मेमोरी है या सीपीयू है या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर हर एक कंपोनेंट के अंदर एक्सेस कंट्रोल का मैकेनिज्म बिल्ट इन है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, दो तरह से ये हमारे पास हो सकता है। इसके अलावा जो बस की विड्थ है वो भी हमारे पास एड्रेस जो बस है उसके अंदर उसकी विड्थ जो है अगर वो ज़्यादा है तो मैक्सिमम मेमोरी को जो है एड्रेस किया जा सकता है, और अगर हमारे पास जो डाटा बस है उसकी विड्थ ज़्यादा है तो ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी होगी और हमारे पास ज़्यादा डाटा को एक वक्त में मेमोरी से एक्सेस किया जा सकता है अगर हमारे पास डाटा बस की विड्थ ज़्यादा होगी। दूसरा हमारे पास जो डेटा ट्रांसफ़र जो है वो रीड से रीड किया जा सकता है डाटा को, या राइट किया जा सकता है, या डाटा को ऐसे ऑपरेशन हो सकता है जिसके अंदर रीड करने के बाद फ़ौरन उसके अंदर उस डाटा को राइट किया जाए, ठीक है। ऐसे में ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, या हमारे पास राइट करने के बाद उसको रीड किया जाए, या उस डेटा को ब्लॉक की फॉर्म में भी रीड किया जा सकता है। इस तरह के ऑपरेशन भी हो सकते हैं कि डेटा को ब्लॉक्स में रीड किया जाए या राइट किया जाए, बिट बाई बिट किया जाए। इसके साथ साथ हमारे पास टाइमिंग हो सकती है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो वो सिंक्रोनाइज हो, उसके अंदर तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो कम्युनिकेशन हो रही है, वो तमाम कंपोनेंट्स जो है एक वो सेंट्रलाइज ब्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज हों और उसकी बेस के ऊपर सारे सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो। या फिर दूसरा हमारे पास है एसिंक्रोनस जिसके अंदर सेंट्रलाइज ब्लॉक जो है वो नहीं यूज़ होगी, कंपोनेंट्स नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि वो जो उनके ऑपरेशन सिंक्रोनाइज होंगे या ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो एक ऑपरेशन के बाद कंप्लीट होने के बाद दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मतलब हर एक ऑपरेशन वो डिपेंड करेगा अपने प्रीवियस ऑपरेशन पे। तो इसकी एग्जांपल हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये सिंक्रोनस बस ऑपरेशन जो है उसकी एग्जांपल है, टाइमिंग डायग्राम है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेशन हो रहा है प्रोसेसर जो है वो मेमोरी से, ठीक है, वो रीड का ऑपरेशन कर रहा है और राइट का ऑपरेशन कर रहा है। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं ये आपके पास सेंट्रलाइज ब्लॉक है, ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं इसको इसकी बेस के ऊपर अपने एक्शंस को सिंक्रोनाइज करेंगे और एक्शन परफॉर्म होंगे। तो यहाँ पे ये क्लॉक यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये पहला साइकिल है, इसको T1 कह दिया। इसी तरह से सेकंड साइकिल जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, T2 सेकंड साइकिल है इसको आपका, और इसी तरह से तो थर्ड साइकिल है। तो ये तीन साइकिल हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये क्लॉक जो है सेंट्रलाइज क्लॉक सिग्नल्स है जो जिससे सारे कंपोनेंट्स से जुड़ाए हैं। और दूसरी जो है हमारे पास ये स्टेटस लाइन है, इसके ज़रिए से स्टेटस सिग्नल जो है वो शेयर किए जाएंगे कंपोनेंट्स। और ये एड्रेस लाइन है जिससे एड्रेस जो है वो स्पेसिफाई किया जाएगा, और ये एड्रेस इनेबल कंट्रोल इनपुट है जिससे एड्रेस लाइन जो अगर एड्रेस है तो उसको इनेबल करने के लिए, और
और ये हमारे पास डाटा लाइन है डेटा को सेंड करने के लिए, ये रीड्स कंट्रोल सिग्नल है रीड्स सिग्नल को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रोसेसर जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल रीड ऑपरेशन से परफॉर्म करता है। तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वो स्टेटस लाइन को स्टेटस सिग्नल को स्पेसिफाई करेगा, एड्रेस जो है उसको स्पेसिफाई करेगा, और एड्रेस लाइन पे एड्रेस स्पेसिफाई करने के बाद एड्रेस इनेबल जो इनपुट है उसको जो है सेट कर देगा। इसी दौरान जो मेमोरी जो मॉड्यूल है वो एड्रेस को वो अच्छा, ये हमारे पास एड्रेस इनेबल करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए जो प्रोसेसर है वो रीड का जो सिग्नल है जिससे वो स्पेसिफाई करता है कि डाटा को रीड करना है उसको इनेबल करेगा। तो मेमोरी मॉड्यूल जो है वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ पे आके वो डाटा को मेमोरी एड्रेस जो कि एड्रेस लाइन को स्पेसिफाई है वो उस एड्रेस से डाटा को रीड करके उसको डाटा लाइन या डाटा बस पे फॉरवर्ड कर देगा और प्रोसेसर उसको रीड करने के बाद ये रीड का जो सिग्नल है इसको डाउन कर देगा, ठीक है। और इसी तरह से जो डाटा जो है रीड हो जाएगा। अब राइट किस तरह से होगा डाटा? राइट करने के लिए प्रोसेसर जो है स्टेटस लाइन पे सिग्नल जनरेट करेगा, एड्रेस लाइन पे एड्रेस को स्पेसिफाई कर देगा, ठीक है। और उसके साथ साथ राइट का जो सिग्नल है राइट कंट्रोल इनपुट है उसको इनेबल कर देगा क्योंकि डाटा को राइट करना है और दूसरे साइकिल में ही डाटा को भी बस पे फॉरवर्ड कर देगा प्रोसेसर, ठीक है। जो मेमोरी मॉड्यूल है वो इस राइट के सिग्नल को जब रिकॉग्नाइज करेगा तो मेमोरी राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा डाटा बस से डाटा को रीड करके, और उसके बाद ये राइट का सिग्नल जो है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है, या क्लियर हो जाएगा। इस तरह से प्रोसेसर जो है सिंक्रोनस जो बस ऑपरेशन है उसके में हर एक ऑपरेशन जो है वो सिंक्रोनाइज होगा क्लॉक के साथ, ठीक है। अब ये हमारे पास एग्जांपल हो गई सिंक्रोनस बस ऑपरेशन की। और नेक्स्ट आप एग्जांपल देख रहे हैं करंट स्लाइड है इसके ऊपर, ये एसिंक्रोनस बस ऑपरेशन। इसमें हमारे पास कोई सेंट्रल जो है क्लॉक नहीं होती जिसके साथ सारे कंपोनेंट्स सिंक्रोनाइज हो, बल्कि एक ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद दूसरा ऑपरेशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसर क्या करेगा, अगर उसने यहाँ पे रीड के ऊपर जो टॉप पे जो हमारे हमें नज़र आ रही है डायग्राम, इसके अंदर प्रोसेसर है वो रीड कर रहा है, तो वो स्टेटस को लाइन को स्टेटस जो है वो ट्रांसफर करेगा एड्रेस लाइन पे, एड्रेस को स्पेसिफाई करेगा और रीड की सिग्नल जो कंट्रोल सिग्नल है उसको इनेबल करेगा। और इसी तरह से हमारे पास जब हमारे पास मेमोरी मॉड्यूल रीड के सिग्नल को रिकॉग्नाइज करेगा तो वो डाटा को डाटा बस के ऊपर डेटा लाइन्स के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। प्रोसेसर उसको रीड करने के बाद एक्नॉलेज जो यहाँ पे आपको लाइन नज़र आ रही है इसके ज़रिए से जब वो रीड करना शुरू करेगा तो ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे जब डाटा फॉरवर्ड करेगा मॉड्यूल तो वो एक्नॉलेज लाइन से उसको स्पेसिफाई कर देगा, और इसी तरह से जब प्रोसेसर इसको रीड कर लेगा तो एक्नॉलेज लाइन के ज़रिए से इसी स्टेटस को फॉरवर्ड करेगा मेमोरी मॉड्यूल। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास बॉटम पे जो आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास राइट साइकिल है एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। जब प्रोसेसर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो स्टेटस लाइन पे सिग्नल जो है फॉरवर्ड करता है, एड्रेस स्पेसिफाई कर देता है एड्रेस लाइन पे, और उसी टाइम के ऊपर डेटा को भी फॉरवर्ड कर देता है डाटा बस के ऊपर डाटा लाइन पे, और साथ में जो राइट का सिग्नल जो है उसको भी राइट के सिग्नल को भी इनेबल कर देता है। और जब हमारे पास मेमोरी मॉड्यूल इसको रिकॉग्नाइज करता है तो ये डाटा जो है मेमोरी पे राइट कर दिया जाता है, और उसके बाद एक्नॉलेज सिग्नल के जरिए से मेमोरी मॉड्यूल जो है वो प्रोसेसर को
اسپیسیفائی کرتا ہے کہ ڈراپ کر کے کہ اس نے ڈیٹا کو رائٹ کر دیا. یہ ہمارے پاس اے سنکرونس بس آپریشن جو ہے اس کے ریڈ اور رائٹ آپریشن کس طرح سے ہوتا ہے اس کی ایکسپلینیشن.